In our satsangs, generally the talk is about being happy. Is it that easy to be happy? Mhm. It's just drawing your attention that God means happiness. But is it easy to catch hold of God? Not so easy. So be happy, not so easy. I tried my best all my life to be happy. Mhm. Everything that Charvak would suggest, Charvak is also a darshan. Charvak means worldliness, materialism. Everything that Charvak would suggest or people would suggest, party jaya karo, you should drink, you should dance, you should sing, you should earn money, you should have family. I did all that. I could not get happiness. I admit that. I confess that. I did all that to the extremes. Till the age of 30, I tired myself. खुशी नहीं मिली. That's when spirituality begins. A very earnest seeking for that which Guru convinces you that that's feasible, that's possible. It is not an imagination. Happiness is not an imagination. Happiness is a reality. God is not an imagination. I keep changing words, God and happiness are synonyms. God is not an imagination. God is a reality. Rest, everything is an imagination. So, materialism is an imagination. Everything which you think will give you happiness will not. Will not. Definitely not. God alone will give you happiness. But then God is not understandable, not describable. Just like happiness is not understandable. When it happens, it happens. So it happens always through the medium of the Guru. So don't waste time in a mandir or with a Guru, but know him to be the source of happiness. Mm, Otherwise, you're wasting time. Know him to be the source of all happiness. Balihari Guru Apne, Tevhari Sadwa. It means, how do I explain it? Balihari Guru Apne. I mean, I am completely his. His means he is what? He is happiness. बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी सातवार जिन मानस ते देवते किए कीर्तन लगी वार. पता नहीं कैसे किया उसने. ऐसा कुछ कर दिया कि बस शांति ही शांति हो गई. क्या कर दिया, कैसे कर दिया, ये तो नहीं समझ. अनुपपद्य. इट्स नॉट लॉजिकल, बट कुछ हो गया. गुरु ने पूछा मुझे. गुरु ने, आई मीन, आई कांट इवन नेम द गुरु नाउ. यस, देयर was a guru, there is a guru, but guru तो disappear हो जाता है ना. When he merges with you, then he doesn't have any name. So I cannot say I am a Sikh or a Muslim or a Hindu, and I cannot also say that I am none of them. I am everything. So no particular name I would talk about the guru, because guru is just happiness. He enters you, and then you don't know what has happened. Through the agency of the Guru alone, it will happen. Ekumkar Guru Prasad. So, Balihari Guru Apne. Je 100 chanda ugve.
सूरज चढ़े हजार, गुरु के बिना कोई बात नहीं बनेगी. So, Guru is a potential who convinces you that happiness or God is not an illusion, it's a reality. But your suffering is an illusion. You are not being able to experience happiness because of Alzheimer's. Alzheimer's is a disease. I don't know how many of you have heard about it, but social media talks a lot about it. So you might, these days, there's a movie, Sayyara, yeah, Sayyara movie, in which the girl develops Alzheimer's. So the world is suffering from Alzheimer's. नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत. प्रेम भूल गया है, बाकी सब कुछ आता है. हैप्पीनेस भूल गई है, बाकी सब कुछ आता है. बीमारियों के बारे में भी पता है, पॉलिटिक्स का भी पता है, अमीरी गरीबी भी पता है, फैमिलीज के बारे में भी पता है, सबके नाम याद हैं. जो जो लोग मिलते हैं उसके नाम याद हो जाते हैं, बहुत सारे श्लोक याद हैं. मगर असली चीज भूल गई है. जिसको असली चीज भूल जाए उसको अल्जाइमर्स बोलना चाहिए. जो भी रियलाइज्ड लोग हैं ना, गुरु नानक को अल्जाइमर्स है, बुद्धा को अल्जाइमर्स है, ट्रू अल्जाइमर्स. उनको कोई दुनिया के बारे में नहीं पता कुछ भी, तो सिर्फ प्रेम के बारे में पता. कॉजलेसली, अकारण, वो किसी पर्टिकुलर चीज को देख के प्रेम नहीं करते, बस वो सब चीज से प्रेम करते. थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कर लेते. बच्चे को कैसे प्रेम करना चाहिए, वाइफ को कैसे करना चाहिए, दुश्मन को कैसे करना चाहिए, सांप को कैसे करना चाहिए, मगर करते वो प्रेम ही है बस. अभी सांप को थोड़ा हाथ थोड़ा लगा लेंगे, सांप को दूर से प्रेम कर लेंगे हाथ जोड़ के. सो हर चीज को प्रेम ही करते हैं वो भूल गया है, प्रेम भूल गया है, बाकी सब कुछ आता है. सो प्रेम क्या होता है, दिल. हार्ट भूल गया है, ब्रेन बड़ा स्ट्रांग है, ब्रेन इज वेरी इंटेलिजेंट. और जिसको हार्ट भूल जाता है वो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल बोलता है. और जिसको ब्रेन भूल जाता है उसको तो ट्रू एल्जाइमर्स हो गया, वो तो प्रेम में है. सो व्हाट डिड हैपन, व्हाट हैपेंड इन दिस मूवी Sayyara? I haven't seen it, but the gist of it. Well, the girl forgets love. बट सैयारा क्या करते हैं, सैयारा कौन होते हैं, फायर फ्लाई, वॉन्डरिंग स्टार, जिसमें से लाइट आती है, लाइट आती है उसमें से. वो प्रेम नहीं भूल सकता कभी भी. वो भगवान है, वो आपका बिलावेट है, वो नहीं भूलेगा, वो गुरु है. वो प्रेम नहीं, उसको तो आता ही नहीं प्रेम के सिवा कुछ भी. उसका तो दिमाग विमाग नहीं है, वो तो सिर्फ प्रेम ही आता है उसको. तो वो छोड़ता ही नहीं कभी भी, आगे पीछे उसके घूमता रहता. आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द मूवी, बट द जिस्ट इज लाइक दिस. वो उसके आगे पीछे घूमता रहता. और जो एल्जाइमर्स वर्ल्ड जो मेडिकल डिजीज है उस तो इरिवर्सिबल है, उससे तो मृत्यु हो जाती. मगर जो सचमुच का एल्जाइमर्स है वो तो अविद्या है, अज्ञान है. वो तो रिवर्सिबल है पक्का, 100%. किसी दिन तो प्रेम याद आ ही जाएगा. सैयारा ऐसे छोड़ेगा तो नहीं आपको. वन विल नॉट लीव यू. वो कोई ना कोई फॉर्म लेके आपके आगे पीछे घूमता रहता. किसी दिन आपका प्रेम जाग जाता है. जब प्रेम जाग जाता है फिर आप ऐसी बातें करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ.
फिर कोई सफरिंग नहीं है। फिर मैं कहता रहता हूँ खुश रहा करो। अरे खुश रहना कोई आसान तो नहीं है। बहुत डीपली यू विल हैव टू yearn फॉर इट। एनीथिंग विच यू yearn फॉर, आई मीन जस्ट लाइक इन अप टू क्लास 12th तो मैंने बहुत पढ़ाई की। एंड अभी था कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलनी है, डॉक्टर बनना है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड द वर्ज ऑफ सुइसाइड, कि अगर एडमिशन नहीं मिली तो आई विल नॉट लिव। हो सकता है ना नहीं मिले एडमिशन, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती। सो आई वुड नॉट बी एबल टू लिव इफ आई डू नॉट बिकम अ डॉक्टर। ऐसे ही एट द एज ऑफ 30 मेरे को कोई शांति दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे शांति चाहिए। फिर मैं गुरु के पीछे पड़ गया। 4 साल पढ़ा रहा पीछे, पागलों की जैसे। फिर आई वॉज सिटिंग ऑन द 20th फ्लोर in Tata Hospital in Bombay, 20th floor. I saw myself jumping from 20th floor to commit suicide. सचमुच बता रहा हूँ। क्योंकि अभी अगर नहीं हुआ तो बस अब बहुत हो गई मेरी मेहनत। अभी तो वही वाली 12th क्लास वाली सिचुएशन, कि अभी मैंने पूरी जोर लगा दिया, अगर एडमिशन नहीं मिली तो बस खत्म, लाइफ शुड एंड। सो ऐसी सिचुएशन थी कि आई वुड हैव जंप्ड फ्रॉम द 20th फ्लोर, एंड दैट्स व्हेन light appeared in front of me. And when light appears, वो छोड़ती नहीं है फिर कभी भी। फिर आप ऐसी बातें करते रहो तो खुश रहा करो। मेडिटेशन क्या होती है? कुछ नहीं होता है। नहीं, मेडिटेशन होती है कुछ चीज, एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। अंदर कुछ बाजा बजता रहता है, ऐसे लगता है कि बस कुछ हो गया है, एल्जाइमर्स हो जाता है, दिमाग को कुछ नहीं आता, कोई श्लोक नहीं आते, कुछ नहीं आता, मगर दिल में कुछ है। ऐसे लगता है, हर वक्त लगता है कि बस कुछ चाहिए ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं है। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया। बस आपको अल्टीमेट चीज मिल जाती है, वेदांत हो जाता है। वेदांत कोई पढ़ने वाली चीज नहीं होती है। पढ़ तो लो, मैंने भी पढ़े हैं, मगर वेदांत तो एक हैपनिंग है ना। वेदांत इज ए हैपनिंग। अब कुछ नहीं चाहिए। पीएचडीज तो करो, जरूर करो, मगर पीएचडी इज ए हैपनिंग। So, my role is to tell you that God is a reality, happiness is a reality, and suffering is an illusion. किसी दिन Sayyara will wake you up. He will not leave you. You just keep yearning for Him. You keep yearning for Him. With the belief and faith that He is a reality, rest everything is an illusion. मरने से पहले एक बार वो लाइट तो देख लो, देख लो। ऐसे श्लोकों लोकों से बात नहीं बनेगी। तज्जप तदर्थ भावना यथाभिमत ध्यानात्। जिस तरीके से भी ध्यान लगाया जा सके लगाओ। जब जो कुछ भी जप रहे हो जान लो कि तुमको चाहिए क्या। मेरे को फुलफिलमेंट चाहिए, और वो संभव है, असंभव नहीं है। ऐसे कोई बीमारी बीमारी का इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोबारा कोई ना कोई और बीमारी आ जाएगी। हम मांगते क्या रहते हैं। मेरे को एक खांसी थी जो कभी जाती ही नहीं थी, मैंने सर्जरी भी करवा ली तब भी नहीं जाती थी। वो जाती ही नहीं थी, वो सारा दिन खांसी रहती थी, सांस भी आना मुश्किल हो जाता। एक बार मेरे गुरु जी सामने आके खड़े हुए, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या चाहिए। एनीवे जो कुछ भी हमने बात की, माई वाइफ वॉज वेरी हैप्पी,
जिशा वॉज वेरी हैप्पी कि आज तो गुरु जी से मांग लिया होगा कि मेरी खांसी ठीक हो जाए। एंड शी वॉज वॉचिंग मी, एंड शी व्हेन वी मेट ईच अदर शी वॉज वेरी हैप्पी। शी पापा को बोला खांसी ठीक करने के लिए। ओ माय गॉड, ये खांसी तुम्हारे दिमाग में आ गया। मेरे को खांसी वांसी से क्या फर्क पड़ता है? मेरे को जो चीज चाहिए मुझे वही चाहिए। ये फजूल की चीजें नहीं चाहिए। मेरे को बचा लो, जिंदगी मरने लगा हूं, मर जाऊंगा फिर क्या फर्क पड़ेगा? मर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं मरने वाला था, एक बार मेरे को वेंटिलेटर लग गया। वो भगवान ने मुझे पूछ ही लिया कि बचना है कि मरना है। वैसे ये फजूल के क्वेश्चंस मत पूछो। तुम मेरे सामने खड़ो, क्या फर्क पड़ता है? मरो जियो, क्या फर्क पड़ता है? जिसको भगवान मिल जाए उसको क्या चाहिए ये जीवन से? फिर मैं ऐसी बातें करता रहता हूँ कि खुश रहा करो। खुश रहना इतना आसान तो नहीं है। yearn फॉर इट, नो दैट इट्स पॉसिबल। परिवार नहीं छोड़ना, काम नहीं छोड़ना, ये ऐसे ही कर चलता रहे सब कुछ। जैसा भी है चलता रहे, गलतियां वलतियां मत निकालो। हरे राम, किसी चीज की कोई गलती मत निकालो। गुस्सा उस्सा क्यों आता है? जो आपको कोई गलत लगता है तो कोई तरीका ढूंढो कि कोई गलत ना लगे। मेरा वाला तरीका कोई जरूरी ठीक नहीं है कि मैं खुद ही सब गलत काम कर देता हूँ, फिर कोई गलत लगता नहीं। दिस इज नॉट द ओनली वे, यू फाइंड योर ओन वेज कि कोई गलत ना लगे। माई ब्रदर इज ईटिंग चिकन एंड मुझे लगा कि इज लाइक अ डॉग, बट द मोमेंट आई फेल्ट कि आई एम कॉलिंग माई ब्रदर अ डॉग जस्ट बिकॉज ऑफ चिकन, आई सेड मैं खुद भी खाऊंगा। आई एट चिकन सो दैट आई डोंट फाइंड फॉल्ट्स विद एनीबडी। सो मुझे कोई गलती नहीं दिखती किसी में। सो मैं कैसे गुस्सा हो सकता? पर आप अपना कोई तरीका ढूंढो। गुस्सा उस्सा किस बात का? इल्यूजन है सब कुछ। ये सुपना, सोवत नहीं जानने। ये सुपना है, ये सपना है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ में जिंदगी ना निकल जाए कहीं। हरे राम, जब हुआ तब हुआ, छोड़ो। इसमें ही ना वेस्ट कर दो जिंदगी। वाहिगुरु, हम क्यों शिकवा करें झूठा? क्या हुआ जो दिल टूटा? कोई भी कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं है। जो चीज चाहिए उसको पकड़े रखो। चाहिए क्या? शांति चाहिए, भगवान चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। वो इटर्नल है, वो कभी मरेगा नहीं। जब एक बार भगवान मिल जाएगा, हैप्पीनेस मिल जाएगी, प्रेम मिल जाएगा, ये सब सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची। उसको भगवान बोल सकते हैं, उसको अमृत बोल सकते हैं, उसको मोक्ष बोल सकते हैं। कुछ भी बोल लो, उसको प्रेम बोल सकते हैं। डिवाइन लव, प्लेटोनिक लव। हरे राम, बस प्रेम। और जब प्रेम होता है तो पता नहीं होता है कौन है मेरा बेलव। मेरा बेटा है, बेटी है, वाइफ है, क्या है नहीं पता। हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। प्रेम प्रेम ही होता है। इट इज कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड। कंफ्यूज्ड होता है, उसको नहीं पता ये रिश्ते क्या है। उसको कभी अपना बेटा बना लेगा, कभी बेटी बना लेगा, कभी वाइफ बना लेगा, कभी दोस्त बना लेगा, कभी माँ बना लेगा, कभी बाप बना लेगा। ये तो सब कंफ्यूजन है। ये तो ह्यूमन वर्ल्डली प्लेटफॉर्म पे है। हरे राम, ही जस्ट लव्स। गॉड इज लव, गॉड इज हैप्पीनेस, गॉड इज शांति। एंड ये इल्यूजन नहीं है, सच है। हरे राम, आप ढूंढने वाले बनो, आपको मिल जाएगा। सीक एंड यू शिल फाइंड। हरे राम, पक्का मिल जाएगा। हरे कृष्ण, हरे राम।
कृष्ण, हरे राम।